بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جلدی اور تعجیل کے لیے دعا کرنے کے سلسلے میں تھی، اور ہم حرف لام میں پہنچے ہیں لواءہ علیہ السلام کہ امام زمان علیہ السلام کا پرچم، چونکہ یہ پرچم اس وقت ظاہر ہوگا جس وقت امام تشریف لائیں گے، اور اس کے ذریعے سے درد و غم، ہم و غم دور ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ امام کے ظہور کی جلد ہونے کی دعا کریں۔ اس میں سے چند حدیثیں پڑھ چکے تھے۔ اگلی حدیث 536، وفی حدیث آخر ان ابی جعفر علیہ السلام فی وصف رایتہ، امام زمان علیہ السلام کے پرچم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم بحث مرابطہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک حدیث اور اسی پرچم کے حوالے سے ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ان ابی جعفر علیہ السلام فی وصف رایتہ، امام باقر علیہ السلام حضرت امام زمان علیہ السلام کے پرچم کے بارے میں، رایت یعنی پرچم کے بارے میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما ہی واللہ من قطن ولا کتان ولا قز ولا حریر، نہ تو امام زمان علیہ السلام کا پرچم کاٹن اور دھاگا وغیرہ کا ہوگا، نہ ہی حریر، اور قز بھی اسی ایک قسم ہے حریر کی، دیباج، قز اور حریر، ابریشم، اس طرح کے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کسی قسم کے لباس، کپڑے میں سے نہیں ہے امام زمان علیہ السلام کا جو پرچم ہوگا علیہ السلام، نہ وہ حریر و دیباج و ابریشم اور ان سب جیسے امور میں سے ہوگا۔ فقلت من ای شیء ہی، تو راوی کہتا کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ مولا پھر آپ ہی وضاحت فرمائیں کہ یہ جو پرچم ہوگا کس چیز کا ہوگا، کس چیز سے بنا ہوا ہوگا۔ تو امام نے فرمایا قال من ورق الجنت، یہ جنت کے پتے کا بنا ہوا ہے۔ نشرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم بدر، جناب رسول خدا نے اس پرچم کو پھہرایا تھا، لہرایا تھا، کھولا تھا بدر کے دن۔ مسلمانوں کی کفار و مشرکین سے پہلی جنگ، جنگ بدر صغریٰ و کبریٰ کہلاتی ہے۔ ایک ہی جنگ کے مقدماتی چڑھائی کو صغریٰ، اور پھر باقاعدہ جو جنگ ہوئی ہے اس کو کبریٰ کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں پیغمبر کے ہمراہ کل 313 لوگ تھے اصحاب پیغمبر میں سے۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے اس پرچم کو جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اور جنت کا پتا اس سے بنا ہوا تھا، اس کو لہرایا تھا۔ ثم لفھا، پھر آپ نے اس کو سمیٹ دیا، اس کے پرچم کو لپیٹ دیا، ودفعها الی علی علیہ السلام، اور امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ فلم تزل عنده، علیکم السلام، پھر یہ پرچم امام کے پاس رہا، امیر المومنین علیہ السلام کے پاس یہ پرچم رہا، حتی کان یوم البصرہ، یہاں تک کہ بصرہ کا دن آیا۔ بصرہ کا دن، بصرہ کا دن کا مطلب کیا ہے؟ بصرہ میں جو امام سے جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل، جس میں خلیفہ زادی اور اس کے دو داہنے بائیں جو پیغمبر کے خاص الخاص اصحاب تھے، طلحہ اور زبیر، اور ان لوگوں کی قیادت میں وقت کے امام حجت خدا امام امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے اتنے لشکر تیار کر لیے کہ بعض روایت میں 60,000 تک بتایا جاتا ہے۔ 60,000 لوگ اس کے ساتھ ہو گیا، عائشہ کے ساتھ، لیکن 60 لوگ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ نہیں ہوئے۔ اسی لیے شاعر نے زبردست شعر کا، میں آپ کے سامنے اس شعر کو ذکر کر چکا ہوں۔ یہ کتاب ہے ہماری بہت بہترین کتاب زیارت عاشوراء کی شرح پر، میں نے اس سے بہتر شرح ابھی تک نہیں دیکھی، اور کئی لوگ یہ بات کہہ چکے ہیں بزرگوں میں۔ اس کا نام ہے شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، فارسی میں ہے، عربی ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی خلاصہ کر دیا، آپ خریدیے گا تو فارسی والی۔ علامہ ابو الفضل رازی تہرانی، زیادہ فارسی میں
اصل کتاب فارسی میں ہے اور فارسی ہی والی خریدیے گا کہ اس کتاب کو علامہ ابوالفضل رازی تہرانی نے تالیف فرمایا ہے. بہت بزرگ بہت زبردست شخصیت ہے. زبردست تولائی و تبرائی شرح ہے زیارت عاشورہ کی. اس میں ایک قصیدہ ایک چند اشعار نقل کرتے ہیں کہ یہ امت رسول تھوڑی ہے، یہ امت عتیق ہے. عتیق سے مراد ابو بکر. یہ امت جو ہے امت عتیق ہے، امت ابو بکر ہے، امت رسول خدا نہیں ہے. ورنہ رسول خدا کی بیٹی چند دن کے بعد لوگوں کو بلا رہی تھی، دعوت دے رہی تھی. بلا فصل جو بیٹی ہے رسول خدا کی، بذات الرسول ہے، اس کی آواز پر لبیک کہنے والے 60 بھی نہیں نکلے. اور ابو بکر کی بیٹی 25-26 سال کے بعد، اور وہی رسول خدا سے کیا رشتہ ہے؟ صبح میں آئے شام کو طلاق دے دی جائے، ختم ہے نا یہی. لیکن اس کے باوجود یہ امت عتیق ہے، امت رسول خدا نہیں. کہ رسول خدا کی بلا فصل بیٹی اپنی مظلومیت کے اوپر پکار رہی ہے. کوئی خبیث نہیں آیا ساتھ دینے کے لیے سوائے ہاشمی اور چند مومن اصحاب کے. اور جب ابو بکر کی بیٹی نے جو شور شرابہ ہنگامہ شروع کیا تو 60,000 کا لشکر، وہ بھی اتنے لمبے سفر طے کر کے، اور صرف اس کی اونٹ کی مہار کو سنبھالنے کے لیے 70 ہاتھ کٹ گئے، 400 مارے گئے. کتنا جسے کوئی ہیروئن ہو، نہیں کہنا چاہیے لیکن ہیروئن ہو، کسی شہر اور دیار میں پہنچ جائے تو پوری پبلک ٹوٹ پڑتی ہے، جوان بوڑھے بچے سب کے سب. ایسے ہی یہ ہیروئن جو پیغمبر اسلام کی تھی. غلط ہے تعبیر کرنا، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے. اس کتیا نے ایسا کھیل کھیلا، ایسا سازش رچی کہ اس کے نام پر اتنے لوگ جمع ہو گئے. اصل اونٹ کی مہار پکڑنے کے لیے 400 لوگ مارے گئے، 70 لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے. 70 لوگوں کے یا 400 لوگوں کے، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے، آپ دیکھیے گا. شرف سمجھتے تھے اونٹ کی مہار پکڑنا. دکھائی نہیں پڑ رہی تھی، پردے میں تھی، بہت زبردست پردہ تھا، لوہے کا پردہ تھا، ہودج معمولی نہیں تھا. اماں کے بیٹوں نے ادھر کے مولا کے چاہنے والے خوب زبردست تیر چلایا. یہ بھاری بھرکم مضبوط لوگوں نے تیر چلایا، ایک تیر بھی ہودج کے اندر گھسا نہیں. مولا کے زبردست سپاہی جو تلوار کے دھنی تھے، تیر کے چلانے کے دھنی تھے، ایک بھی اتنا تیز قریب جا کر کے مارا. بس ایک میں نے ذکر کیا تھا یہیں پہ، بس ایک پتہ نہیں کون تھا کس نے اتنی تیزی کے ساتھ مارا کہ وہ لوہے کو پھاڑ کر کے اندر گھس گیا. تھوڑا سا خراش آ گیا، ہلکا سا زخم آ گیا. باپ کے تو وہ بھی خراش نہیں آیا تھا، بیٹی کے خراش آ گیا. مجاہدہ آپ کہیے، آپ کی امی جان ہے نا تو مجاہدہ کہیے. اس نے جہاد کیا تو زخمی ہوئی، اور اس کے باپ نے جہاد کیا تھا، بہت زیادہ جہاد میں شرکت کی، کئی زخمی نہیں ہوا. یہ اس کا شرف ہے. خیر دور نہ جائیں. یہ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جی، یوم البصرہ. تو یوم البصرہ مخصوص دن ہے. یوم بصرہ وہی جمل کا دن ہے کہ جس دن امیر المومنین حجت خدا سے عائشہ اور اس کے ہمنوا سب لڑنے کے لیے آئے تھے. 18,000 مسلمان مارے گئے. اس طرف کے امیر المومنین کے بھی بہت سے اصحاب شہید ہوئے. 18,000 سوچئے کس بات پر، کس لیے، کیا مولا امیر المومنین کا جرم تھا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اتنا سب ہنگامہ کیا گیا، اس کے نام پر آئے، بصرہ کا بیت المال لوٹا، آپس میں تقسیم کیا اور امام سے جنگ کرنے لگے. تو امام امیر المومنین علیہ السلام، دیکھیے معصومین بہت سے کام عادی طور پہ کرتے ہیں. عوام میں یہ سب چیزیں ایسے بیان کرنے والی نہیں ہیں، لیکن کیونکہ مشکل ہو سکتی ہے بیان کرنے والے کے لیے. معصومین علیہ السلام بات سیدھے عادی طور پر کرتے ہیں. امیر المومنین اسلام کو پرچم رسول خدا پھیلا کر کے، لہرا کر کے سامنے والے دشمنوں کو پسپا کرنا مقصد تھا یا نہیں؟ ظاہراً یہی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں مجاہدین جو امام کے ساتھ تھے وہ قابو نہیں پا رہے تھے لشکر عائشہ پر، قتل نہیں کر پا رہے تھے. بہت کیا، 18,000 کو کاٹا، کم تھوڑی ہے. لیکن اس کے باوجود جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی. جب صرف مہار پکڑنے کے لیے 70 ہاتھ یا 400 ہاتھ کٹ سکتے ہیں. بنی زبہ ایک قبیلہ تھا، اس کے افراد زیادہ پہلوان، اس کے بہت زیادہ اس ہیروئن کو ماننے والے تھے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو زیادہ پیش کر رہے تھے.
खैर, तो यौमुल बसरा अमीरुल मोमिनीन इस्लाम को परचम लहराना पड़ा। मैं तो यही कहूँगा, परचम लहराना पड़ा, ताकि जिस तरह से जंग बद्र में रसूल खुदा के साथ सिर्फ 313 से उधर से 1000 की तादाद में कुरैश के बड़े बड़े पहलवान, 70 बड़े पहलवान जो नामी गिरामी पहलवान थे मारे गए, 70 असीर हुए, और इस तरह के वाक़यात बद्र में पढ़िए। तो उस दिन परचम जन्नत के परचम को रसूल खुदा को लहराना पड़ा, फिर लपेटा, फिर अमीरुल मोमिनीन के हवाले किया। आपने जंगे जमल में उसको लहराया। फ़नशरहा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़फ़तहा, ये फ़ा यानी क्या, यानी जिसका नतीजा ये हुआ। फ़ाए तफरी नतीजे के तौर पे ज़िक्र किया जाता है। मैं नहीं कहता अमीरुल मोमिनीन ने जिहाद नहीं किया, उनके असाब ने जिहाद नहीं किया जिहाद, लेकिन काबू नहीं पा रहे थे। और कुरान मजीद ने भी इसकी तरफ इशारा किया है। मैंने इसी फ़िक़्ह ज़हरा में ज़ाहिरन या शायद फ़िक़्ह ज़हरा में लिखा है, कायनात की पावरफुल माँ उन्वान करार दिया, उसको ज़रूर पढ़िएगा। कायनात की पावरफुल माँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर माँ जो अगर कोई है तो आप हजरात की अम्मी है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। खूब आगे बढ़ते हैं। फ़फ़तहल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को फ़तह नसीब फरमाई। कब काबू चला, जब इस परचम को लहराया गया। सुम्मा लफ़्फ़ा, फिर इमाम ने इसको लपेट करके रख दिया। वह इंदना होना का, इमाम इशारा कर रहे हैं कि वो परचम हमारे पास है और फना जगह रखा हुआ है, इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पे है। ला यंशुरुहा अहदुन हत्ता यक़ूमल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ, कि अब इस परचम को ना कोई इमाम ना इमाम का कोई जानशीन, इस परचम को कोई नहीं लहराएगा, कोई नहीं नशर करेगा, फैलाएगा, सिवाय साहिब अमर के। फ़ैज़ा क़ामा नशरहा फ़लम यब्क़ फ़िल मशरिक़ वल मग़रिब अहदुन, इल्ला के बाद गुफ्तगू की ज़रूरत है। जब इमाम इस परचम को लहराएंगे, जो जिस परचम की हवा कह लीजिए, उसका असर ये होगा अलैकुम सलाम, पूरी दुनिया में फैलेगा। जो ही आप इस परचम को लहराएंगे उसका बहुत बड़ा असर होगा। ला यंशुरुहा हत्ता, इसको बंद, फ़लम यब्क़ फ़िल मशरिक़ वल मग़रिब अहदुन इल्ला लक़ियहा, यहाँ दिया हुआ है। आप लोगों के नीचे हम गुफ्तगू पहले कर चुके हैं। लाअनहा, उस परचम के ऊपर लोग लानत करेंगे। क्यों, उसकी वजह यहाँ पे ज़िक्र नहीं हुई, दूसरी रवायात में ज़िक्र हुई है। क्योंकि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से पहले बहुत से परचम लेकर के 60 लोगों का भी ज़िक्र हुआ है, 12 लोगों का भी ज़िक्र हुआ है, और भी तादाद कम ज़्यादा है कि जो नाम अहले बैत के ऊपर परचम बुलंद करेंगे और लोग इकट्ठा होंगे अहले बैत के नाम पर, जंगें होंगी और बाद में मारे जाएंगे या वो खुद ही फरार कर जाएंगे। बहरहाल बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत होने की वजह से जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस परचम को लहराएंगे तो लानत करेंगे। व यसीरुर रअब क़ुद्दामहा शहरन, मगर इस परचम की धाक क्या होगी, रोब इस परचम के 1 महीने की मसीर पर आगे आगे, 1 महीने की मसीर पर दाहिने बाएँ, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो ही इमाम इस परचम को लहराएंगे काफ़ी असर होगा। 1 महीने की मसाफत पर दूर रहने वाले दुश्मन थर्रा जाएंगे, डर जाएंगे इमाम के इस परचम के फरहान। अनवान यमीनहा शहरन वान यसारहा शहरन शहरन इला आखिर। सुम्मा क़ाल इन्नहु यख़्रुजु मौतूरन, मौतूर का माना किया जा चुका है। वित्र यानी तनहा, अकेला, यानी वो शख्स जिसको शहीद कर दिया गया हो और उसका कोई इंतकाम लेने वाला ना हो, उसके लिए मौतूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। गज़बान तो गज़ब से है ही है, असफ़न दर्द महसूस करने वाले। ले गज़बिल्लाहि अला हाज़ल खल्क़, इमाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो गुस्से की हालत में, गज़बान जोश और गुस्से की हालत में होंगे। मगर ये याद रहे कि हम इससे पहले बयान कर चुके हैं कि नक़मा अलल काफ़िरीन व निअमत अलल मोमिनीन, मौला रहमत और नेमत होंगे मोमिनीन के लिए, दुश्मनों के लिए अज़ाब और इंतकाम होंगे। खूब व अलैहि क़मीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी कान अलैहि यौम उहुद, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो आपके जिस्म के ऊपर रसूल खुदा की वही कमीज़ होगी जो मीरास नबूवत में से, जिसे अब्बास रसूल खुदा के चचा ने हासिल करना चाहा था, और फिर मौलाना का बिस्मिल्लाह ले जाइए। अभी मामा ही सर पर रखा था, उठ नहीं पाए, अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे बस की बात नहीं है। किताब इख्तिसास में
यहीं पे बयान करने की ज़रूरत है कि जो इस गुफ्तगू से ताल्लुक़ भी रखता है, और हम आधी रवायत पहले पढ़ चुके हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम नक़ल करते हैं कि इब्न अब्बास ने सवाल करने के लिए भेजा एक आयत के सिलसिले में। मौला ने कहा कि वो मुझे रूबरू करना चाहता है कि मैं, इन्हीं दूसरे लफ्ज़ों में मुझे छेड़ रहा है कि मैं उसे जवाब दूँ। हालांकि उस वक्त वो अंधे हो चुके थे। इमाम ने उस आने वाले शख्स से कहा कि जाओ और उससे 2 आयतों की उसके सामने तिलावत करो, उन दोनों आयतों का मतलब और माना उससे पूछो। वो शख्स गया और वो आयतें, एक यही वसाबिरु वराबितु जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक आयत और जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों से कहा था कि क्या मफ़हूम उसका ये है कि ऐ मेरी कौम वाले, मैं अगर तुम्हें नसीहत भी करूं तो ला यनफ़उकुम नुस्ही, अल्लाह ने चूँकि तुम्हें गुमराह करने का इरादा कर लिया है तुम्हारी शरारतों की बुनियाद पर, लिहाजा अगर मैं तुम्हें नसीहत भी करूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आयत है। और ये आयत जो असाबिरु व राबितु से पहले उसमें जो आयत में ज़िक्र हुआ, मन कान फ़ी हाज़िही अअमा फ़हुव फ़िल आखिरति अअमा व अज़ल्लु सबीला, जो इस दुनिया में अंधा है आखिरत में भी अंधा होगा, बदतरीन अंधा होगा। ये ज़ाहिरी अंधा मुराद नहीं है, यानी मुनहरिफ। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उस सवाल करने वाले से कहा कि जाके इन दोनों आयतों का पूछना। उसने जाके पूछा, वो समझ गए। कौन? अब्दुल्ला इब्न अब्बास। उस वक्त अपने आप को कुछ समझ रहे थे यकीनन थे, सफ़े अव्वल के शियों में शुमार होता है, लेकिन आदमी का मिजाज चेंज होता रहता है। और ये बहरहाल उम्मीद यही है कि आक़िबत बख़ैर होंगे, क्योंकि इमाम का साथ दिया है, मौला का बहुत साथ दिया है और इमाम की नुमाइंदगी की है। लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बयान से कि इस आयत के बारे में पूछना, मतलब ये कि जो इस दुनिया में अंधा वो आखिरत में भी अंधा होगा और बदतरीन अंधा होगा, यानी इनको झेलना भी पड़ेगा अब्दुल्ला इब्न अब्बास को। और दूसरी वो आयत कि अगर मैं हज़रत नूह वाली कि अगर मैं नसीहत भी करूं तो इनके ऊपर नसीहत का असर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने इनकी शरारतों, उनकी खबासतों की बुनियाद पर इन्हें गुमराह करने की ठान ली है। हज़रत नूह की कौम वाले, हज़रत नूह ने उनसे कहा था। इन दोनों आयतों को इमाम ने कहलवाया कि जाके पूछना। वो समझ गए कि इमाम क्या बयान कर। दर हकीकत ये दोनों आयतें सबब और शान नुज़ूल के एतबार से कुछ माना रखती हैं, लेकिन इशारा अब्बास और अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तरफ भी है। इसलिए बाज़ उलमा, हमारे मरहूम नजफ़ी साहब नाज़मिया वाले, वो मैं मौजूद था मजलिस में, उन्होंने कहा ना तो मैं चचा को मानता हूँ ना चचा के बेटे को। ऐसे ही बरजस्ता मंबर से महफिल शाह खुरासान मुंबई में अशरा पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये चचा भी और उनके चचा के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी, ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, यानी मैं इन दोनों को मानता नहीं हूँ। ये उनका नज़रिया था। लेकिन बहरहाल मदह में भी बहुत सी बातें हैं, तो इंशाअल्लाह अंजाम अच्छा होगा। लेकिन इमाम सज्जाद इस्लाम का ये कहलवाना और इस तरह से इशारा दे रहा है कि ये लोग झेलेंगे, फिर उसके बाद जो है हो सकता है अंजाम बखैर हो। वहीं पर एक जुमला ये भी है कि मेरी ज़रूरियत में भी मुराबित होगा, रबात की बात चल रही है, उसकी भी ज़रूरियत में भी मुराबित होगा, मगर दोनों सफ़ के ख़िलाफ़। मुराबतैनी क्या? रबातुल खैल का तज़किरा हम पिछले हफ्ते कर चुके, पिछले हफ्ते नहीं दर्स के पिछले हफ्ते, 1 महीना हो गया, 2 महीना 2-3, एक तो बुध को एक मरतबा वो था लॉकडाउन, नहीं क्या बोलते हैं, क्या करे वो कर्फ्यू था, और एक दिन मजलिस थी, इस तरह से 2-3 जलसा नहीं हो पाया। तो उसमें मैंने गुफ्तगू की थी, बताया था कि उनकी ज़ुर्रियत से जहन्नमी पैदा होंगे, हमारी ज़ुर्रियत से जन्नती पैदा होंगे। और फिर उसमें लफ्ज़ मुराबिता के ऊपर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि मुराबित नस्ल अहले बैत से, यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, और उधर भी अब्दुल्ला इब्न अब्बास की भी नस्ल से मुराबित होगा। कौन होगा मैं नहीं जानता, इस रवायत में इसकी वजाहत नहीं की गई। खैर बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, आगे बढ़ते हैं कि अलैहि कमीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर के ऊपर कमीस रसूल खुदा होगी, फ़िट आएगी। गैर मासूम के ऊपर वो कमीज़ फ़िट नहीं आती। वसैफ़ रसूलिल्लाह ज़ुल्फ़िकार, और वो ज़ुल्फ़िकार जो
मौला अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के ऊपर के लिए नाजिल हुई थी, वो रसूल खुदा की ज़ुल्फ़िकार मौला के हाथ में होगी। मैं नीचे चला गया। व अमामतहु अस्सहाब, सहाब यानी बादल, लेकिन अमामा रसूल खुदा का उसका नाम सहाब था। वदिर रसूलिल्लाह अस्साबिगा, अस्साबिगा यानी जायज़ राइज और चलने वाली, रंग करने, अलबत्ता उस साबिगा साद से, यहाँ पे जवाज़ के माने में अच्छे के माने, लेकिन उसका नाम ही है साबिगा। रसूल खुदा की ज़राह का नाम साबिगा है। वसैफ़ रसूलुल्लाह ज़ुल्फ़िकार युजर्रिदुस्सैफ़ अला आतिक़िही समानियत अशहुर। जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे गैज़ व गज़ब के आलम में, क्यों गैज़ व गज़ब? लिग़ज़बिल्लाह, अल्लाह ने चूँकि गैज़ व गज़ब किया होगा इस मखलूक के ऊपर, इसलिए इमाम उस गैज़ व गज़ब इलाही की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। ज़ालिमीन, मुशरिकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन से जंग व जिहाद है। इसलिए 8 महीने तक युजर्रिदु, तजरीद यानी म्यान से निकालना, तजरीद यानी साफ़ सुथरा खाली होना, मुजर्रद आप हज़रात खुद जानते हैं। युजर्रिदुस्सैफ़ यानी म्यान से तलवार निकालेंगे तो 8 महीने तक म्यान में तलवार वापस नहीं रखेंगे, जंग ही जंग है। यक़्तुल हरजन, हरजन से मुराद यहाँ पे भारी तादाद में, हर जो मर्ज के माने में नहीं, भारी तादाद में लोग कत्ल किए जाएंगे। अक़ूलु हाज़िहिल अहादीस तदुल्लु अला तअद्दुद रायातिही, ये रवायत दलालत करती है कि मौला की के साथ जो परचम होगा वो एक परचम नहीं है, लिवा अलग, रायत अलग। एक रायत रसूल खुदा वाली जन्नत से जो बन कर के आया है वो होगा, और ख़ुद जो आमतौर से परचम आमतौर से जो हुआ करता है लोगों के पास वो भी होगा। वयदुल्लु अलैहि अखबारुन उखर, और भी रवायतें हैं। तरकना ज़िक्रहा फ़ी हाज़ल मुख्तसर, चूँकि हम इसमें फ़वाइदुद्दुआ के ऊपर काम कर रहे हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि उन तफसीलात को हम पेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये सब पढ़ चुके थे हम लोग, नहीं जी। हर्फ मीम में मुराबता भी पढ़ चुके थे थोड़ा सा। मुराबता यानी सरहद के ऊपर ड्यूटी देना। मुराबता का मतलब क्या है? सरहद के ऊपर ड्यूटी देना। इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। इसका तज़किरा 8वें बाब में करने को कह रहे हैं कि जो जिल्द सानी में आएगा, हमने कुछ उसका ज़िक्र किया है। वाम्मा फ़ज़लुद्दुआ लिल मुराबितीन, और वो जो सरहद के लोग पर लोग बैठते हैं उनकी फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि मासूम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ नंबर 27 खुद ही यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं। यही काफ़ी है कि इमाम जंगजुओं के लिए सरहद के ऊपर, भले ही जंग ना हो रही हो, सरहद पे दिफा के लिए, हिफाजत के लिए जो लोग बैठते हैं वो एक एक दिन का बेपनाह अजर व सवाब पाते हैं। उनकी फ़जीलत व हुस्न ज़ालिक यदुल्लु अलैहि अल अक़्ल व नक़्ल, अक़्ल भी इसकी फ़जीलत को बयान करती है, नक़्ल यानी रवायात में भी। अम्मल अव्वल फ़लअन्नहुम हुमातुद्दीन, ऐसे लोग दीन के मुहाफ़िज़ हैं। हुमात हामी की जमा है, हामी यानी हिमायत करने वाला, मदद करने वाला, हिफाजत करने वाला। जो सरहदों पे, इस्लामी मुल्कों की सरहदों के ऊपर हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के ज़मीन के मुहाफ़िज़ सिर्फ नहीं है, दीन के मुहाफ़िज़ भी उनको कहा गया है। व उयूनुल मुस्लिमीन, ऐन की जमा है, ऐन से मुराद यहाँ पे जासूस, लेकिन लफ्ज़ जासूस चूँकि भद्दा है, बुरा माना जाता है, इसलिए आप इसका तर्जुमा कुछ और दूसरा करिए। ऐन से मुराद फ़ारसी में दीदाबान कहते हैं, वो लोग जो कहाँ फ़ौज है, कहाँ दुश्मन है, कहाँ उनका असलहा है, कहाँ, ये सब के लिए जासूसी करते हैं, छोड़े जाते हैं आगे, उनको जो है उयून कहा जाता है। अब ये लफ्ज़ बहरहाल यह इस्तेमाल हुआ है। यही लोग कौन जो सरहदों पे हैं, उनकी निगाह कहाँ होती है कि दुश्मन के अफराद हमारी तरफ ना आने पाएँ, इसलिए उनको उयूनुल मुस्लिमीन कहा गया। मुसलमानों की आँखें, मुसलमानों को दीदाबान, मुसलमानों के हामी व बचाने वाले। वलाक़्लु यक़ज़ी बिहुस्निद्दुआ लिमन हुवा कज़ालिक, जो आदमी ऐसा हो कि अपनी जान के ऊपर खेल करके जा करके सरहद पे ड्यूटी दे रहा है, उसके लिए जान का ख़तरा हमा वक्त होता है, इसके लिए अक्ल भी कहती है कि दुआ करनी चाहिए। वाम्मन नक़्ल, वाम्मस्सानी नक़्ल फ़यकफ़ीना दुआ मौलाना सय्यिदुल आबिदीन अलैहिस्सलाम लहुम, हमारे लिए रवायात अगर ना भी हों, हैं तो रवायत बहुत ज़्यादा जो
दूसरी जिल्द में ज़िक्र हुई हैं, मैंने उसको एक मरतबा बयान भी किया, मुझे याद है कि इस मतलब के लिए कि नक़ल में भी, रवायात में भी मुराबितीन के लिए, सरहद पे ड्यूटी देने वालों के लिए बड़ा अजर व सवाब है। उसकी अज़मत के लिए यही काफ़ी है कि मौला सज्जाद की पूरी एक दुआ है, फ़ी सहीफ़तिल मुबारकतिस सज्जादिया वहुव दुआ उस्साब वल-इश्रून, 27वीं दुआ। वाम्मा मा यदुल्लु अला कौन मौलाना अल-हुज्जा अलैहिस्सलाम मुराबितन फ़ी सबीलिल्लाह फ़इद्दतु रवायात। अब वो सरहद पे जो हिफाजत करते हैं, मसलन इराक़ की सरहदों के ऊपर, शाम की सरहदों के ऊपर, मुख्तलिफ़ सरहदों के ऊपर लोग रहते हैं, मुसल्लह रहते हैं, उनके बहुत से अख्तियारात होते हैं। तो ये अजर व सवाब उनके लिए, उन मोमिनीन के लिए है कि जो सरहदों की हिफाजत करते हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी मुराबित हैं, एक उनकी कैफियत, खुसूसियत, लक़ब, आप उन्हें मुराबित यानी सरहद दीन के ऊपर, सरहद मुस्लिमीन के ऊपर रहने वाला और इस अजर व सवाब को हासिल करने वाला। तो कहने की जहाँ तक मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मुराबित फ़ी सबीलिल्लाह होने की बात है, तो इसमें बहुत सी रवायतें हैं। एक रवायत ये सब पढ़ चुके हैं जी, एक तौक़ी जो जनाब शेख मुफीद के लिए सादिर हुई थी, जिसका नुस्खा इस तरीक़े से है। इमाम ने क्या कहा था, मिन अब्दिल्लाहिल मुराबित फ़ी सबीलिही इला मुल्हमिल हक़्क़ व दलीलिही। मेरा ख़त, मैं अब्दुल्ला, मेरा ख़त किसके नाम, मैं मुराबित फ़ी सबीलिल्लाह हूँ, यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपने लिए मुराबित का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए जिसको हक़ का इल्हाम और जो दलील हक़ है, यानी जनाब शेख मुफीद की बड़ी मदह है इसमें। दूसरी रवायत मिनहा माफ़ी किताबिल ग़ैबा लिश्शैख़ नौमानी, अभी मैं उसको देख रहा था। इस रवायत में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इन्ना इब्न अब्बास बअस इलैहि मन यसअलु अन हाज़िहिल आयत, इसी आयत के बारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरु वसाबिरु वराबितु, इस आयत के बारे में इब्न अब्बास ने भेजा इमाम सज्जाद के पास कि जाओ पूछ करके आओ इस आयत का मतलब क्या है। फ़ग़ज़ब अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ना गुस्सा हुए, वक़ाल लिस्साइल, साइल से कहा, वदित्तु अन्नल्लज़ी अमरका बिहाज़ा वाजहनी बिही। ये फ़िक़रा जो यहाँ पे ज़िक्र हुआ है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमाम गुस्सा होकर कह रहे हैं कि इब्न अब्बास ने मुझे इस आयत के ज़रिए छेड़ा है, जबकि मैंने उठा करके ग़ैबत नौमानी और इख्तिसास और एक कौन सी किताब, 2-3 किताबें देखी, ये बिल्कुल इसके बरक्स है रवायत में। उसमें यह है कि उस क्या नाम इब्न अब्बास ने इमाम के लिए ये कहा था कि इन्होंने ये 2 आयतों के बारे में जो मैंने भी आपके सामने बयान किया, इन दोनों आयतों को मुझसे पूछ करके मेरे रूबरू हुए हैं, मुझे झाड़ने की कोशिश की है, मुझे बुरा भला कहा है, दूसरे लफ्ज़ों में, यानी बिल्कुल माना उल्टा है। ये इब्न अब्बास का है, न कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। लेकिन बहरहाल इमाम सज्जाद ने अगर ये कहा हो कि जिसने मुझसे ये सवाल करवाया है वो मुझसे रूबरू होना चाहता है, टकराना चाह रहा है। सुम्मा क़ाल नज़लत फ़ी अबी व फ़ीना, ये आयत हमारे बारे में, हमारे आबा व अजदाद के बारे में नाजिल हुई है। वलम यकुन रिबात अल्लज़ी उमिरना बिही बअदो, यहाँ पे ख़त्म इबारत। रिबात का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हुकूमत नहीं बनी थी उस ज़माने में। तवज्जो कर रहे हैं, साबिरु वराबितु, आयत उतर गई है मगर आयत का मिस्दाक अभी पैदा ही नहीं हुआ। जैसे बगत इहदाहुमा अलल उखरा, कुरान मजीद में है ना, बागियों के गुरु और अहकाम, इसका हुक्म कहाँ से पता चला, जब इमाम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जंगें हुई तब लोगों को मालूम हुआ कि बागी के अहकाम क्या हैं। मैं यहाँ पे गुफ्तगू कर चुका हूँ। इसी तरीके से कुरान मजीद की बहुत सी आयत के मसादिक व माना और मफ़ाहीम बाद में ज़ाहिर हुए मासूमीन के ज़माने में या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने के बाद वाज़े होंगे। तो इमाम ने यहाँ पे कहा है कि ये आयत मेरे बाबा के बारे में नाजिल हुई है, हमारे बारे में नाजिल हुई है, जबकि अभी रिबात का कोई सवाल नहीं था, सरहदों पे मुसल्लह लोग मुकर्रर किए जाएं ऐसा था नहीं, तब भी ये आयत हमारे बारे में नाजिल हुई है। अल्लज़ी उमिरना बिही बादु व सयकूनु ज़ालिका, हाँ ऐसा होगा कि हम में से मुराबित होंगे जो सरहदों के ऊपर हिफाजत करेंगे, और मुसलमानों में से ज़ालिका ज़ुर्रियतम मिन नस्लना अल मुराबित, जो हमारी नस्ल में से एक मुराबित है, वो कौन है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। पूरी रवायत तफसील से मौजूद है, आगे बढ़ते हैं। मुरसलन अन अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम फ़ी हाज़िहिल आयत, यही आयत इमाम फरमाते हैं नज़लत फ़ीना,
पाँचवें इमाम फरमाते हैं हमारे बारे में ये नाजिल हुई है, वलम यकुन रबात अल्लज़ी उमिरना बिही बादो, रबात का मसला ही नहीं था उस वक्त, व सयकून ज़ालिका यकून फ़ी नस्लना अल मुराबित व मिन नस्ल इब्न नासिल। इसकी वजाहत की ज़रूरत है। इब्न नासिल से मुराद क्या है? नसीला एक कनीज़ थी, अब्दुल मुत्तलिब ने या अब्बास ने, मुझे इस वक्त याद नहीं है, उसको सर्च करिए निकल आएगा, नून से ये लाम है, नसीला। उससे बेटे लोग, कई बेटे हो गए थे तो वो लोग नहीं चाहते थे कि उनसे बाप शादी करे। जैसे जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो हम तो उसे नापसंद करते हैं कि बाप अब जो है बीवी लेकर के आए, अम्मा नई अम्मा लेकर के आए। तो ऐसे ही मसला था। इब्न नासिल से मुराद अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, उसी की नस्ल से, उसी, इसलिए इब्न नासिल कहा है। तो नासिल यानी इब्न नासिल, नासिल नहीं, इब्न नासिल से यानी नसीला का बेटा, वहाँ पे भी मुराबित होगा मगर वो दुश्मन की तरफ से होगा, और हम में से भी क्या नाम है मुराबित होगा, यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। ये टकराव बयान करना मकसूद है। नीचे हाशिए में क्या दिया हुआ है? हाँ, नीचे यही वजाहत की है। किनायतुन अन इब्न अब्बास, अल्लाह मजलिसी फरमाते हैं इब्न नासिल किनायतुन अन इब्न अब्बास व नासिल अल मुतक़द्दम व ज़ाजिर और बिस्साइल मुसल्लस किनायतुन अन उम्मे अल अब्बास। अब्बास की माँ अब्दुल मुत्तलिब ने एक कनीज़ से शादी की थी जिसका नाम नसीला था, उससे ये अब्बास पैदा हुए थे, इसलिए उम्मे अब्बास नसीला। फ़क़द वक़अ फ़िल अशारिल मुनशदत फ़ी ज़म्मिहिम निस्बतुहुम इलैहा, यानी मज़म्मत हुई है बहुत से अशार में, किसकी? अब्बास और इब्न अब्बास की, और उनकी नस्ल की, नसीला की औलाद कह करके लोगों ने ख़िताब किया है। जैसे किसी को बुरा भला कहना हो तो उसकी माँ का नाम लेते हैं ना, वैसे ही फ़लानी के बेटे, फ़लानी के पूत हैं, वैसे नसीला के बेटे हैं, ये मज़म्मत की जाती थी। वलहासिल इन्ना मिन नस्लिना मन यंतज़िर अल खिलाफ़ा व मिन नस्लिहिम ऐज़न, अब्बास बनी अब्बास में से भी खिलाफत के मुंतज़िर हैं, खिलाफत पाएंगे। पाँचवें इमाम फरमा रहे हैं, पाँचवें इमाम और चौथे इमाम, कि इनकी नस्ल में भी खिलाफत है और हमारी नस्ल में भी खिलाफत है। वलाकिन दौलतुना बाक़िया व दौलतुहुम ज़ाइला, हमारी हुकूमत बरकरार रहेगी जब कायम होगी। दौलतुना आखिरुद्दुवल, हमारी हुकूमत आखिरी हुकूमत है, उसके बाद किसी भी कौम व कबीले को हुकूमत करने का चांस खुदावंद मुताल नहीं देगा। अभी तो चाहे जौलानी आ जाए, चाहे ज़रक़ावी आ जाए, चाहे बगदादी आ जाए, कोई भी आ सकता है, लेकिन जब मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की हुकूमत कायम हो जाएगी तब किसी की दाल नहीं गलेगी। इस सिलसिले में एक रवायत ज़रूर बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के भाई थे जनाब ज़ैद शहीद नाम, सगे भाई थे, लेकिन इसके बावजूद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से भी मुमानअत कि क़याम न करिए, अगर क़याम करेंगे तो आपको शहीद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद छठे इमाम का ज़माना आया, जनाब ज़ैद ने जो क़याम किया है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो आ करके भतीजे से कह रहे हैं, इमाम ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कोनासा के मैदान में आपको फांसी पे लटका दिया जाए, दार पे लटका दिया जाए, तो आपकी मर्ज़ी। यानी इमाम सरीह तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अम्र बिल मारूफ से कोई थोड़े मना करेगा, नहीं अनिल मुनकर से नहीं मना करेगा, अहले बैत के ऊपर जुल्म व सितम से ढकेलने के लिए, दूर करने के लिए कोई थोड़ी मना करेगा। हक़ दिलाने के लिए जो क़याम करेगा उसको इमाम मासूम मना नहीं कर सकते। हमारे बुज़ुर्गों ने सब ने लिखा है कि जनाब ज़ैद शहीद का क़याम बरहक़ क़याम था। अबू हमज़ा सोमाली कितनी बड़ी शख्सियत, उनके 2-3 जवान बेटे शहीद हुए हैं जनाब ज़ैद के साथ, मगर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की रवायत अपने भाई के सिलसिले में हो या उमूम के तौर पे हो, जैसा कि यहाँ से रवायत में ज़ाहिर है, फरमाते हैं ज़ुहूर क़ाइमिना, इबारत में पढ़ता हूँ, मसलु ज़ुहूरिल क़ाइम मिन्ना अहलल बैत का खुरूज रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे क़ाइम आले मोहम्मद का ज़ुहूर, खुरूज, क़याम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे जैसे जनाब रसूल खुदा का ज़ुहूर व क़याम था। ये समझने वाली चीज़ है कि रसूल खुदा क्या तलवार लेकर के चले आए थे? नहीं, पहले क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, 3 साल तक मख्फियाना, फिर उसके बाद 10-11 साल तक मक्की ज़िंदगी में कभी तलवार पैगम्बर इस्लाम ने नहीं उठाई, ना उनके असहाब ने।
जब सर पानी सर से ऊपर हो गया मक्की ज़िंदगी में, उज़्न लिल्लज़ीना, फिर उसके बाद आयत आई है और फिर जंग व जिदाल शुरू हुआ है ना। मक्की ज़िंदगी में पैगंबर ने तलवार नहीं उठाई, ज़ख्म सहे, कांटे बरसाए गए, उजड़ी डाली गई, रास्ते में कांटे, इला आखिर पत्थर मारे गए। इमाम फरमाते हैं, पाँचवें इमाम, मसल खुरूज काइमना अहलल बैत मिसल खुरूज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे कायम उसी तरह से खुरूज फरमाएंगे जैसे रसूल खुदा ने खुरूज और ज़ुहूर फरमाया था। दावत दी, पहले ऐलान किया। इसी तरीके से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब टेक लगा करके आवाज़ देंगे तो यही कहेंगे कि मैं तुम्हें, हमारा हक लूटा गया, हमारे इज्जत को मारा गया, ऐसे मुख्तलिफ़ बातें जो बराबर आप सुनते रहते हैं। इमाम फ़ौरन तलवार नहीं उठाएंगे। हाँ, 8 महीने तक तलवार है, कब? जब मुखालिफिन सर चढ़ेंगे तब। यहाँ कूफे में, यहाँ पे भी जंग है, हिंदुस्तान से भी जंग होगी, रूम से भी जंग होगी, अंताकिया के इलाके में जंगें होगी, ये अकरात सुन्नी जो तुर्की वाले हैं ये सब भी जो है लड़ेंगे, बहुत सी जंगें हैं। इमाम क्या फरमा रहे हैं कि हमारे कायम का ज़ुहूर और खुरूज बिल्कुल रसूल खुदा जैसा है। फिर उसके बाद फरमाते व मसलो मन खरजा मिन्ना अहलल बैत, सादात के लिए ख़ास तौर से मिन्ना अहलल बैत क़ब्ल क़ियामिल क़ाइम अलैहिस्सलाम। बड़ी बड़ी शख्सियात हो, मर्जा की हद तक हो, अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम में से जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के क़याम से पहले क़याम करेगा, उसकी मिसाल मसल फ़रखिन, उस चूज़े और परिंदे के मानिंद है। तारा फ़वक़ा मिन वक्रिही, उड़ा और अभी हाथ पैर मजबूत हुए नहीं थे, उड़ा ज़मीन पे गिर गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? तलाअबत बिही अस्सिबियान, बच्चे उस परिंदे को लेकर क्या करते हैं? उसके पखन को तोड़ते हैं, उसको हिलाते उड़ाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़े से बच्चे जैसे किसी परिंदे से खेलते हैं, उसके पर को नोचते हैं, पखने को नोचते हैं, इला आखिर में वो या तो मर जाता है या बहरहाल नाकारा हो जाता है। इमाम की तशबीह पे गौर करिए, मिन्ना अहलल बैत कहा है, गैरों के क़याम की बात नहीं हो रही है, अबू मोहम्मद जौलानी की, अबू बकर बगदादी वगैरह की बात नहीं हो रही है। हम अहले बैत में से 5वें इमाम फरमा रहे हैं, यानी शुरू ही से मना कर रहे हैं, मगर एकदम से मना भी नहीं कर रहे हैं, वरना ज़ैद शहीद के क़याम के ऊपर आपको इश्काल हो जाएगा, और कोई इश्काल नहीं कर सकता, क्योंकि छठे इमाम ने ख़ुद फरमाया कि अगर हमारे चचा को हक़ मिल जाता तो वो जानते थे कि हक़ साहिब हक़ की तरफ पलटाना है। और लो इबारत मैंने एक मरतबा पढ़ी थी आप लोगों के सामने कि अगर उन्हें हुकूमत मिल जाती तो अहल को जानते थे, नहीं मेरे हवाले कर देते। सही है। तो मासूमीन ने तरहुमन शफ़क़तन, तरहुमन कह लीजिए, ये चाहा है कि हम अहले बैत में से कोई भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले खुरूज ना करे, वरना वो आखिरकार जो है जैसे परिंदा बच्चों के हाथ लग जाए, उसको चाहे जैसे तोड़ मरोड़ करके ख़त्म कर डालते हैं, मार डालते हैं, ऐसे ही दुश्मन क्या करेंगे उनके साथ। खैर, तो इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं निकलता कि क़याम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से पहले अम्र बिल मारूफ़ का बाब बंद है, नही अनिल मुनकर का बाब बंद है। नहीं, अपने ऊपर जुल्म सितम हो रहा हो, दिफा न करें। 62 जिल्द में जहाद किफ़ाई के ऊपर किताब निकली है, 62 जो फतवा दिया था सिस्तानी साहब ने, उसके ऊपर 65 या 62 जिल्द में मौसूअतुद्दिफा